Well, as you can see on your screens, when we are talking about the big guns, well, BJP has got none other than Union Home Minister Amit Shah hitting the ground to win their sales. You can see these visuals coming in from Jangpura. And you can see the Union Home Minister holding up a gada. He also had earlier held up a sword as he was being felicitated. Let me, in fact, go across to Sabyasachi. Sabyasachi, we expect now Amit Shah to make sure that the attack on Aam Aadmi Party the last day really sticks. Well, absolutely. See, the BJP and its allies are currently doing a carpet bombing here in the national capital. More than 20 Jan Sabhas and rallies have been planned here in the national capital. And on the screen, you can see Tarvinder Singh Marwa, the BJP candidate from the Jangpura constituency, and he's going to take on Manish Sisodia. And on your screen also, you can see Union Home Minister Amit Shah, Delhi BJP President Virendra Sachdeva. All of them are currently in Jan Sabha, and massive amount of people have gathered out here to listen to Home Minister Amit Shah, because continuously he has been launching a scathing attack against the Aam Aadmi Party. In fact, not only the BJP but its allies like the TDP, Chandrababu Naidu, all of them have launched an attack on the Aam Aadmi Party, stating that the Aam Aadmi Party have failed the promises that they have made to the people of the national capital. And earlier people used to think that they would go to the national capital for to build their career, but what the current situation of national capital is, that is the reason why the youth from the Delhi are moving to the Silicon Valley and other states for employment. So such attacks have been coming in from the BJP side and its allies, and Home Minister Amit Shah continuously has been holding rallies and Jan Sabhas across various locations in the national capital, and he has been taking on the Aam Aadmi Party. He has been confident that the BJP is going to form the government here in the national capital, and time and again reminding how the Aam Aadmi Party have failed to deliver on the promises that they have made to the people of the national capital in the last 10 years. And in fact, if we look specifically at the seat of Jangpura, Sabyasachi, it's interesting because Aam Aadmi Party, which has won it the last time around, had a 50% vote share. However, what's very interesting is in the last elections, you had the BJP creeping up with a 32%. So it does become, the margin of victory becomes very close in this case. Is this going to be very significant? Is this the reason why Amit Shah himself is leading the fight back in the seat of Jangpura? Well, that's right. See, this time all eyes are set on the Jangpura Assembly seat, from where the former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, is contesting against BJP's Tarvinder Singh Marwa and Congress Farhad Suri. And Jangpura constituency in the 2020 Delhi polls, the Aam Aadmi Party candidate Praveen Kumar had won the seat with a margin of 16,000 votes and defeated BJP candidate Imrit Singh Bakshi. And now the Jangpura constituency is extremely crucial from the political point of view, because in 2020 the Aam Aadmi Party has got a vote share of around 50.88%, where Praveen Kumar defeated BJP candidate and the Congress candidate at that time was Tarvinder Singh Marma, who stood third with around 15% of vote. So clearly that is the reason why the Jangpura seat becomes extremely crucial from the political point of view. And Manish Sisodia also, while he has released a video stating that it may happen that the Aam Aadmi Party may win the Delhi polls but lose the Jangpura seat. So clearly it's a three-way war that could be seen in the Jangpura seat, and that is the reason why on the last day of campaign it's a BJP heavyweight Home Minister Amit Shah who is campaigning for Tarvinder Singh Marwa. Stay on with us, Sabyasachi. In fact, on the other hand, while you have the big guns coming out of the BJP, Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party too has addressed the media, and he's reiterated his claim that the Aam Aadmi Party workers are being attacked at the behest of the BJP. In fact, Arvind Kejriwal, citing the letter by the Election Commission, he has claimed that Delhi battle was turning into a battle between honest people and gundas. Watch this. आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते। लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं,
वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? तो इस बार लोगों के पास दो ऑप्शन है। एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। Well, let me go across to Sabyasachi. But before that, I believe Union Home Minister Amit Shah is about to speak. So let's listen in. भैया बैठ जाओ जरा, आप भी बैठ जाइए भाई। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, बैठ जाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, जंगपुरा वालों की आवाज को क्या हो गया? इतने सारे लोग दूर नजर पहुंचे तक हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आवाज ऐसी रखिए कि जयकारे से शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसी आवाज को क्या हो गया? इतने सारे लोग दूर नजर पहुंचे तक हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आवाज ऐसी रखिए कि जयकारे से शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसी आवाज से बोलना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले सोनिहाल। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी सांसद श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, यूपी के सांसद भाई सतीश गौतम जी, श्री विजेंद्र धामा जी, बहन योगिता सिंह जी, राकेश पठानिया जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, ऐसे सरल हृदय के हमारे प्रत्याशी सरदार तरविंदर सिंह जी। आगे आओ तरविंदर सिंह, आगे जोर से ताली बजाओ तरविंदर सिंह के लिए। और आज जंगपुरा में इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। आज मैं यहां पर सनातन धर्म मंदिर, भैरव बाबा मंदिर और शीतला माता मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं 2.5 साल जंगपुरा में रहा हूं, जंगपुरा में रहा हूं। यहीं पर एक फ्लैट में मैं पार्टी का जब महासचिव था तो जंगपुरा में ही रहता था। तो जंगपुरा आता हूं तो मुझे मेरे घर में आने की याद आती है हमेशा के लिए। जंगपुरा वालों, मुझे बताओ, इस बार आपदा से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है?
ये आप पार्टी को हटाना है या नहीं हटाना है? भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना, 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें खोल। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं। और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पड़गंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मारवा जी को मैं जानता हूं, एकदम भोले और साफ हृदय का सरदार है भैया। मन से लोगों के लिए काम करता है। पूरे दिन लोगों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति है। रात को 1 बजे भी दरवाजा खटखटाओगे तो खोलकर आपके साथ अस्पताल चल देगा। और मनीष जी धोखा देने में माहिर व्यक्ति। भाइयों बहनों, आप पार्टी हर रोज भाजपा को गाली देने का काम करती और हर रोज 2 झूठे वादे करती। मैं बाद में उनको पूछता हूं कि आपके वादे कितने पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भाइयों बहनों, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर है, वो समाप्त होती है।
भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को कांग्रेस की आदत लग गई थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होगा, क्या कर लेंगे, परंतु ये भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जंगपुरा वालों, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल जी, राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, स्टालिन जी सभी विरोध करते थे और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और ये राहुल बाबा, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव वो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर बैठा है। 2 करोड़ 80 लाख लोग टूरिज्म में कश्मीर जाने लगे और जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था, वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर यात्रा निकलने का काम आज हो गया। भाइयों बहनों, हमने कहा था भैया हो गया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा मेरा मखौल उड़ाते थे 19 में। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा आप देखो, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और मंदिर भी बना दिया। और आज एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में रामलल्ला का बन गया है और रामलल्ला पूरे वैभव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी ओर इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे।
किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सतदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि वे कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनाने, पूरे दिल्ली में मोदी जी का आयुष्मान भारत का योजना लागू नहीं किया। पूरे देश भर में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में होता है। दिल्ली में नहीं हुआ। आपको मिलता है क्या भाई? जोर से बोलो, मिलता है? परेशानी मत करो, मारवा जी को जिता दो। 5 लाख और 5 लाख का सूद, 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर देंगे। दिल्ली को ये प्रदूषण मुक्त बनाने वाले थे, प्रदूषण मुक्त नहीं हुआ। करप्शन मुक्त बनाने वाले थे, करप्शन मुक्त भी नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त बनाने वाले थे, कूड़ा का तो ढेर के ढेर लगे। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को एक बात पूछने आया हूं। किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना, है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? एक केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं, ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें है क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है उन्होंने। और जंगपुरा वाले मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? ये जंगपुरा वालों, ये 52 करोड़ रुपया आपका है, जो शीश महल की भेंट चढ़ गया। और भाइयों बहनों, चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में, एक छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते थे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए। अन्ना साहब अभी तो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी बना दी।
और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्तियां बेच दी। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो ये मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। यहां से इसी धरती का पुत्र मारवा प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे, प्रचंड बहुमत। और भाइयों बहनों, झूठ बोलने में इनको कोई पहुंच नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। जंगपुरा वालों, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने वादा किया कि एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी। और इसके अलावे दिल्ली की हर गरीब महिला को 2500 रुपया हर महीने उसकी बैंक अकाउंट में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर सगर्भा महिला को 21,000 रुपये की हम मदद भेजेंगे। 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर देंगे और 2 सिलेंडर होली और दीपावली में अपनी बहनों को मुफ्त में देने का काम करेंगे। 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज, किसी भी प्रकार का इलाज दिल्ली में मुफ्त हो जाएगा। वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर 2500 करेंगे। विधवाओं का पेंशन 3,000 रुपया करेंगे। और हर झुग्गी झोपड़ी और जे क्लस्टर को मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जे क्लस्टर और झुग्गी झोपड़ी में 5 रुपये में अटल कैंटीन पूरा भोजन कराएगी। सभी बच्चियों को केजी से पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे। ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख का एक्सीडेंट बीमा देंगे। और 13,000 दुकानें जो सील हुई है, केजरीवाल ने सील करी है, इसके सील तोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1947 में पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उनको अपनी भूमि का मालिक बनाएंगे। सारे गीग वर्कर का बीमा लेंगे। और अभी अभी मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आय तक इनकम टैक्स से पूरी मुक्ति देने का काम भी किया है। मुक्ति देने का। भाइयों बहनों, 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक राज्यों में जहां जहां डबल इंजन सरकार बनी,
वहां राज्य कहां के कहां पहुंच गए। हमारा दिल्ली बिछड़ गया है। ये झगड़े ही करते रहते हैं। अभी अभी एक जगह पे सब वादे पढ़ने लगे, 15 वादे पढ़े, तो एक सरदार जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा केजरीवाल साहब एक 16वां वादा भी है आपका, बता दूं? तो खुश हो गए कि मंच पर आकर माइक में बताओ। तो सरदार जी को माइक में बुलाया। सरदार जी के 16वां आपका वादा है कि आप ये सब करने की जगह ये कहोगे कि हमें काम करने नहीं देते हैं, ऐसा बहाना बताओगे। ये पूरे 10 साल बहाने बता रहे, बबुआ जैसा मुंह बनाकर प्रेस में आकर बहाना बताना, झगड़ा करना, यही इनकी फितरत है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है भैया, कोई काम नहीं किया है। और झूठ कितना भी सातिर दिमागी से बोला जाए, इसका आयुष्य लंबा नहीं होता। केजरीवाल जी 10 साल हो गए, आपके झूठ को दिल्ली की जनता जान गई है, जान गई है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये दिल्ली को हम दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर आप सबसे अच्छी राजधानी बनाना चाहते हो तो केजरीवाल बना सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बना सकते हैं? कौन बना सकता है? जोर से बोलो, कौन बना सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ जंगपुरा वालों, 5 तारीख को सुबह सुबह ही लाइन लगाकर मारवा जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? मारवा जी को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? और ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी को निकालोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम। जोर से बोलिएगा, बोले सो निहाल। जंगपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम।